Hi everyone and welcome back to my channel The Literary Lounge again. And so today I have brought for you an explanation, not line by line but a summary and some other tips of the fourth chapter of your book Flamingo, that is The Rat Trap. So let's begin by reading a quick biography about the author Selma Lagerlöf. So she was born in Värmland in western Sweden and was the fifth child out of six, right? So she had five brothers and sisters, right? And her parents were they belonged to upper class, and her father was an alcoholic army lieutenant, right? He was in the army, but he was an alcoholic. शराब बहुत पीते थे. In 1882, she attended a teachers' college in Stockholm, right? And in 1885, she became a teacher at a girls' school where she liked to tell stories, right? I mean, she had a knack for storytelling. उन्हें कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता था. And parables to her students, girl students. In 1891, she published her first, and most popular work, right? Gosta Berling's Saga. Okay, this was her most famous work. In 1894, she met the writer Sophie Elkin, who became a close friend, possible lover. There are still controversies as if they were in love or not, because in those days, falling in love with the same sex was a crime. I mean, it still is in a lot of countries. Lejelov went on to travel to Jerusalem in Israel, and which inspired her book, which was also titled Jerusalem, and then several other countries, eventually giving up teaching. So she finally gave up teaching. Teaching छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना सारा ध्यान किस पे लगा दिया? Writing पे. She started focusing on writing, right? And she wrote very prolifically. बहुत लिखा उन्होंने, बहुत काम किया. With her children's book, The Wonderful Adventures of Nils, becoming especially popular, and also became an outspoken member of the women's suffrage movement in Sweden. तो औरतों के खिलाफ जो क्राइम्स होते थे और जो एक्सप्लोइटेशन होता था उसके खिलाफ वो बहुत बोलती थी. शी वॉज एन ardent advocate of the women's rights, and she became the first woman to win the Nobel Prize in Literature, okay, in 1909. तो ये बहुत बड़ी ऑथर है और वो नोबेल प्राइज जीत चुकी हैं उसके लिए, लिटरेचर के लिए. एंड शी डाइड इन 1940, and she still till date she remains one of the most beloved figure in Swedish literature. Now this story, it takes place somewhere in rural western Sweden, in a vaguely nostalgic part, that is not specified in the story. And this vagueness actually gives this story a fairy tale kind of touch, right? And still an ironworks figure prominently in the work, and its setting relies on the culture of mining and iron processing industry dominant in Värmland, in which the story is being set in the early mid 1800s. Värmland's iron trade then faltered in the late 1800s when Europe and the US became more dominant in the industry. तो क्योंकि यूरोप और अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, तो वहां प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, तो यहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल चौपट हो गई, फॉल्टर हो गई, ठप हो गई, राइट? एज रिफ्लेक्टेड बाय द नरेटर, और नरेटर ने इसको रिफ्लेक्ट भी किया है स्टोरी में, दैट द वंस थ्राइविंग रैम्यो आयरन वर्क्स इज नाउ शट डाउन. अब स्वीडिश लैंग्वेज में कहीं भी अगर जे आता है तो वो या की साउंड देता है. आपको याद होगा, अगर इफ यू हैव वॉच दैट मूवी थॉर, उसमें जो उसका हथौड़ा है, दैट इज रिटन MJONIR, बट इट इज प्रोनाउंस म्योनिर. सो द जे स्टैंड्स नॉर्डिक मैथोलॉजी, नॉर्थ मैथोलॉजी से लिया गया है, वहां जे हमेशा वाई साउंड निकालता है. नाउ दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन हु गोज अबाउट सेलिंग रैट ट्रैप्स मेड ऑफ वायर. तो वो पुराने फार्म्स या बड़े स्टोर्स होते हैं, उनसे जो भी उनका जो स्क्रैप होता है, खराब फेंका हुआ सामान, वो लाके उनसे वो जोड़ जाड़ के वो चूहेदान बनाता है, एंड ही सेल्स देम, राइट? एंड दीज रैट ट्रैप्स आर डैंगलिंग अराउंड हिज नेक. वो उसके गले से, गर्दन से झूलते रहते हैं. बट इट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को जिंदा रखना. इट इज़ वेरी हार्ड टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, राइट? सो दिस मैन द पेडलर, ही लिव्स एज अ ट्रैम्प. ट्रैम्प कहते हैं एक होमलेस आदमी को, राइट, जिसके पास सर पे छत ना हो, कोई ठिकाना ना हो. वॉन्डरिंग द रोड्स एंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, राइट? ही लाइक्स टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज वन बिग रैट ट्रैप, और वो दुनिया को एक रैट ट्रैप की तरह महसूस करता है. दिस इज हिज ओन फिलोसफी, राइट, दैट ऑफर्स बेट फॉर पीपल. बेट क्या होता है? बेट होता है, आप चारा समझ लीजिए, जिससे आप लुभाते हैं किसी को. जैसे कि आप चूहे को पकड़ने के लिए उसमें चीज या रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं, तो वो चीज या रोटी का टुकड़ा बेट होती है. या मछलियों को पकड़ने के लिए अर्थफर्म हुक में लगा देते हैं, दैट इज बेट, राइट? तो ये दुनिया स्पेडलर के हिसाब से एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है. एंड इट
बेट्स पीपल, राइट। वो लोगों को लुभाती है, अलग अलग पैसा, गाड़ी, शोहरत, मकान, जमीन, ये सब इसका लालच देती है और लोग उसमें फंस जाते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ लग्जरी एंड प्लेजर, राइट, एंड देन इन स्नेयर्स देम। इन स्नेयर का मतलब ट्रैप में ले लेना, राइट, इन ट्रैप्ड। वन इवनिंग इन लेट दिसंबर, राइट, द पेडलर, और जाड़ों के दिन थे, दिसंबर था, दिसंबर के एंड की बात है, द पेडलर कम्स टू अ केबिन एंड आस्क्स फॉर शेल्टर। तो पेडलर, रात का टाइम था, ठंड लग रही थी, उसे एक केबिन दिखा रास्ते में, बिल्कुल आइसोलेटेड सा केबिन, लकड़ी की एक छोटी सी कॉटेज बनी हुई हट। तो वो वहां पे नॉक करता है और रिक्वेस्ट करता है कि कैन आई स्टे हियर द नाइट, एंड द ओल्ड मैन हु लिव्स देयर वेलकम्स हिम इन। तो उसमें जो बूढ़ा आदमी रहता है, ही वाज अ क्रॉफ्टर। नाउ अ क्रॉफ्टर इज अ मैन हु वर्क्स इन एन इंडस्ट्रियल फार्म। तो वो जो रैमियो आयरन वर्क थी, उसका जो फार्म था वहां पे, वहां वो काम किया करता था। बूढ़ा हो गया है, उससे फिजिकल वर्क नहीं होता, तो उसने पेडलर को अंदर आने की परमिशन दे दी। ही वॉज वेलकम्ड एंड ही ऑफर्ड हिम फूड, ही ऑल्सो ऑफर्ड हिम टोबैको। उसने अपने टोबैको रोल में से भी उसे एक स्लाइस काट के दिया, एंड दे बोथ स्मोक टुगेदर, द ओल्ड मैन एंड द पेडलर, राइट, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन। द ओल्ड मैन, he shows the peddler 30 kronor that he has earned from selling his cow's milk. Now this old man, because he is old, he cannot do physical work. तो वो physical work तो कर नहीं पाता, तो अपनी कमाई से उसने एक गाय खरीदी थी, जिसका दूध बेच के वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। दिस इज हाउ ही अर्न्स हिज लिविंग नाउ, ओके। तो क्रोनोर जो है वो स्वीडिश करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, अमेरिका के डॉलर होता है। तो उसके पास 30 क्रोनोर होते हैं, जो लास्ट मंथ उसने अपनी गाय का दूध बेच के कमाए थे। Now this man is, very, a kind man, this old man, and he is very honest and very pure of heart. तो उसे लगा कि चलो मैं बात कर रहा हूँ, इसे बता देता हूँ कि मैंने ये कमाई करी है। उसे अच्छा लगा कि हाँ देखो मेरी गाय मुझे कितना कमा के देती है। He had no idea that the man he is helping, the man, whom he has given shelter, is going to dupe him. उसे नहीं पता था कि यही आदमी उसे धोखा दे देगा। So the next morning, after all this is done, they both go to sleep. और वो जो पैसे थे वो एक लेदर पाउच में थे, वो क्रॉफ्टर उसी में रख देता है, एंड देन दे स्लीप, दे वेक अप इन द मॉर्निंग, राइट, द पेडलर लीव्स, वो भी चला जाता है, क्रॉफ्टर भी, दैट ओल्ड मैन, द फार्मर, एंड द पेडलर ऑल्सो लीव, बट देन ही रिटर्न्स, राइट, एंड ही स्टील्स द ओल्ड मैन्स मनी। वो आता है, खिड़की का शीशा तोड़ता है, ही स्मैशेस अ विंडो पेन, उसमें हाथ डाल के वो पैसे निकाल लेता है। गोज इनटू द फॉरेस्ट टू अवॉइड डिटेक्शन, और जंगल में चला जाता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। डिटेक्शन मतलब टू फाइंड, उसे कोई पकड़ ना सके। बट सून फाइंड्स हिमसेल्फ लॉस्ट। जंगल इतना बड़ा था, रात का टाइम था, वो खो जाता है उसमें जंगल में, राइट। ही इज गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, गोल गोल घूम रहा है और उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। रियलाइजेस फाइनली दैट ही हैज बीन कॉट इन द रैट ट्रैप एंड फियर्स दैट ही विल डाई, एंड नाउ ही रियलाइजेस दैट इट वाज हिज टर्न। He had taken the bait. Bait क्या थी यहाँ पे? वो 30 क्रोनोर, वो उसने ले लिए, and now the door is closed. He is trapped and he is going to die here in this jungle, right? The peddler then hears hammering and finds that he is near an ironworks. तभी उसे हथौड़ों की चोट की आवाज आती है, कहीं आसपास में हथौड़ों की चोट की आवाज आ रही थी। तो उसे अंदाजा होता है कि पास में ही कोई आयरन वर्क्स है, मतलब लोहे की फैक्ट्री है, जहां पे लोहा जो है वो शेप दिया जाता है, उसे टूल्स बनाए जाते हैं, राइट। ही टेक्स शेल्टर देयर बाय द वार्म फर्नेस वेयर द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस आर वर्किंग। सो ही फॉलोइंग दैट साउंड, वो उसका पीछा करते करते उस साउंड का फैक्ट्री पहुंच जाता है। वहां फर्नेस जल रहा होता है, भट्टी, राइट। तो उसके पास जाके वो लेट जाता है, उसके, और इतना पास लेटता है कि उसके कपड़ों से जो गीले हो गए थे वो भाप बन के उसमें से निकलता है, राइट। इट कुड बी सीन, इट इज मेंशन्ड इन द स्टोरी, एंड देयर आर few वर्कर्स देयर, द मास्टर ब्लैकस्मिथ, जो सारे ब्लैकस्मिथ का हेड है वो, एंड हिज अप्रेंटिस इज ऑल्सो देयर। वो भी, अप्रेंटिस कौन होता है? ट्रेनी, जो काम सीख रहा हो, जैसे मिस्त्री मैकेनिक की दुकान पे छोटू मोटू चोनू मोनू होते हैं, दे आर ऑल अप्रेंटिसेस। सो ही वाज आल्सो देयर। ये सब लोग काम कर रहे होते हैं, उससे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वहां अक्सर ऐसे ही गरीब से लोग जो भिखारी कारी से होते थे, वो ठंड से बचने के लिए, रात गुजारने के लिए अक्सर आ जाते थे। इट वाज नॉट एन इशू। द आयरन वर्क्स आर ओन्ड बाय अ वेल्दी आयरन मास्टर, राइट, हु फ्रीक्वेंटली विजिट्स द फोर्ज। तो आयरन मास्टर का जो ओनर है वो एक बहुत ही वेल्दी आयरन मास्टर है, और वो अक्सर रात में राउंड लेने आ जाता था कि मेरे वर्कर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ही वॉज वेरी he cared a lot about the quality of iron which came out of his factory. उसे बहुत इस बात का वो था कि मेरी फैक्ट्री से अच्छा माल निकलना चाहिए, ठीक। He comes by that night and sees the peddler, mistaking the peddler for an old regimental comrade, Captain Vonstell. अब उस रात भी वो मालिक जो है आयरन मास्टर, वो फैक्ट्री आ जाता है,
और फानियस की अंधेरे में जो डिम लाइट थी उसे लगता है कि अरे ये तो मेरा कोई बिछड़ा आर्मी में बिछड़ा हुआ साथी है, कैप्टन वॉन स्टेल, ये तो वही है। उसे धोखा हो जाता है, राइट। एंड इट इज अ केस ऑफ मिस्टेक इन आइडेंटिटी। लिटरेचर में अक्सर इसका यूज किया जाता है, ऑथर्स यूज करते हैं मिस्टेक इन आइडेंटिटी, राइट। तो उसे लगता है ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ आर्मी में था, रेजिमेंट में था, कैप्टन वॉन स्टेल। द आयरन मास्टर इनवाइट्स हिम टू कम बैक टू हिज मेना हाउस एंड स्पेंड क्रिसमस विद हिम एंड हिज डॉटर। अब क्योंकि उसे लगता है मेरा दोस्त है, उसे इनवाइट कर देता है, चलो भाई तुम्हारे इतने बुरे हालात हो रहे हैं, तुम चलो मेरे साथ घर, मैं तुम्हें कपड़े अच्छे दूंगा, तुम्हारी हालत सुधारूंगा, एंड यू कैन हैव स्पेंड क्रिसमस विद मी एंड माई डॉटर। तुम घर चलो, मेरी बेटी भी है घर पे, राइट, और तुम हम लोगों के साथ डिनर करना और क्रिसमस स्पेंड करना। दो द पेडलर फर्स्ट प्रिटेंड्स टू बी वॉन स्टेल, he decides the iron master invitation, right, he declines it, वो डिक्लाइन कर देता है। शुरू में तो वो प्रिटेंड करता है कि हाँ मैं वॉन स्टेल हूँ, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ भाई, बड़ा खराब हुआ। क्यों? उसे लग रहा था शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे, मे बी द आयरन मास्टर गोइंग टू थ्रो सम क्रोनोस एट हिम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब उसे लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसने डिक्लाइन कर दिया। उसे लग रहा था वो फंस जाएगा अगर घर चला गया तो। अफ्रेड टू गो टू द हाउस विद हिज स्टोलन मनी, क्योंकि वो चुराए हुए पैसे जो उसने क्रॉफ्टर से चुराए थे वो अभी भी उसके पास थे। द आयरन मास्टर रिलक्टेंटली लीव्स, और आयरन मास्टर हार मान के, रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंग, वो चाह नहीं रहा था लेकिन उसे जाना पड़ा क्योंकि पेडलर राजी नहीं हो रहा था घर जाने के लिए। सो आयरन मास्टर हैड टू लीव। सून आफ्टरवर्ड्स द आयरन मास्टर, आई मीन ही वॉज अ मैन हु कुडंट एक्सेप्ट डिफीट, उसे हार मानना पसंद नहीं था। तो उसने क्या किया? उसने अपनी बेटी को भेजा। द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विलमैनसन, हर नेम इज एडला विलमैनसन, अराइव्स एट द फोर्ज, वो आ जाती है फैक्ट्री, सेंड बाय हर फादर टू परसुएड द पेडलर टू कम टू देयर होम। वो समझा के भेजता है कि भाई अब तुम जाओ, तुम्हारी परसुएसिव पावर्स बहुत अच्छी हैं, यू गो एंड परसुएड दिस फेलो टू कम एंड हैव डिनर विद अस, टू स्पेंड क्रिसमस विद अस। वो भेज देता है और वो एडला आ जाती है, राइट। शी नोट्स दैट द मैन लुक्स अफ्रेड एंड इज प्रोबेबली हाइडिंग फ्रॉम सम पास्ट क्राइम। अब एडला जो है उसकी फेस रीडिंग काफी अच्छी होती है, और जो पेडलर का डिमीनर होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, इट वॉज स्पीकिंग वॉल्यूम्स अबाउट वॉट ही हैज डन। क्योंकि आदमी के दिल में जब चोर होता है वो चेहरे पे आ जाता है। एंड एडला वाज वेरी गुड एट रीडिंग फेसेस। वो समझ जाती है कि ये कुछ डरा हुआ लग रहा है और इसने कुछ किया है, पास्ट में चोरी करी है, क्राइम किया है, जिससे ये डरा हुआ है। बट शी ट्रीट्स हिम काइंडली, लेकिन वो उसे बहुत काइंडली ट्रीट करती है, सो दैट आई मीन इट वर्क्स एज एन आइस ब्रेकर, राइट, एंड एश्योर्स हिम दैट ही कैन लीव फ्रीली व्हेनेवर ही वांट्स। वो उसे एश्योरेंस देती है कि देखो तुम डरो मत, तुम जैसे आओगे वैसे ही फ्रीली हमारे घर से जाओगे, नो हार्म इज गोइंग टू बिफॉल यू, तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगेगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, यू कैन कम विद अस, यू विल बी आई मीन फुल्ली सेफ इन अवर हाउस। द पेडलर एग्रीज टू कम विद हर, और पेडलर फाइनली राजी हो जाता है। तो आयरन मास्टर को जो भरोसा था अपनी बेटी की परसुएसिव पावर्स पे, आई मीन दैट फाइनली अगेन इट हैज कम टू फ्रूइशन, वो अपने काम में सक्सेसफुल हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड एडला ग्रीट द पेडलर। अब अगली सुबह आयरन मास्टर और जो पेडलर वो है एडला है, वो दोनों उसे ग्रीट करते हैं पेडलर को, राइट, एंड हु हैज बीन बेथ एंड ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ्स। अब उसको नहला धुला के, उसका शेवे बना के, हिज अगली मग वाज आल्सो शेवन, राइट, और उसको सामने लाया जाता है। द आयरन मास्टर नाउ रियलाइजेस दैट ही मेड ए मिस्टेक। अब जब रोशनी में, पूरे दिन की रोशनी में आयरन मास्टर उसे देखता है और साफ सुथरा कह रही ये तो कोई और है, इसका मतलब मुझे धोखा हो गया, राइट। ही रियलाइजेस ही हैड मेड ए मिस्टेक, द स्ट्रेंजर इज नॉट कैप्टन वॉन स्टेल। तो जो वो समझ रहा था कि ये मेरा आई मीन ही इज माई ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, मेरे साथ था रेजिमेंट में, ये वो नहीं है, ही इज नॉट कैप्टन वॉन स्टेल, एंड गेट्स एंग्री। इस बात पे आयरन मास्टर को गुस्सा आ जाता है। द पेडलर ऑफर्स टू पुट हिज रैग्स बैक ऑन एंड लीव। अब पेडलर कहता है कि देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अपने फटे सटे कपड़े जिनमें आया था वो पहन के मैं चला जाता हूँ, आई लीव। बट द आयरन मास्टर थ्रेटन्स टू कॉल फॉर द शेरिफ। लेकिन आयरन मास्टर, आई मीन ऑब्वियसली ही वाज अ वेरी पावरफुल मैन, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक, प्रॉपर्टी, बहुत पुराना खानदानी आदमी, तो टाउन के सारे लोग भी उसे जानते थे, पुलिस से लेके हर कोई। सो ही थ्रेटन्स द पेडलर विद एक्शन कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। शेरिफ पुलिस वाले को कहते हैं, राइट। दिस एंगर्स द पेडलर। और ये आयरन मास्टर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ऐसा गरीब आदमी, भिखारी जैसा, जैसे मैं उठा के लाया, वो पलट के गुस्सा करेगा। बट ही गेट्स एंग्री, पेडलर को गुस्सा आ जाता है। क्यों? Who rants about how the whole world is a rat trap and the Iron Master should consider that he might be caught one day too. अब वो वही अपनी फिलॉसफी दोहराने लगता है, रटने लगता है कि ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है और आपका भी नंबर आएगा। अगर आप मुझे भी पुलिस के हवाले करेंगे, याद रखिएगा आप भी फंसेंगे एक दिन इस ट्रैप में, द ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। यू विल ऑल्सो बी कॉट इन दिस रेड ट्रैप एंड देन देयर विल बी नो एस्केप।
फिर उस पे वो ये भी कहता है पेडलर कि आई वॉज नॉट द वन हु वॉन्टेड टू कम हेयर, यू फोर्स मी टू कम, आई रिफ्यूज, देन यू सेंट योर डॉटर, आपने अपनी बेटी को भेज दिया, एंड फाइनली व्हेन आई स्टार्टेड टू ट्रस्ट यू, नाउ यू आर थ्रेटनिंग मी विद पुलिस, आप मुझे अब धमकी दे रहे हैं कि आप मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, राइट? सो एडला इंटरवीन्स इन बिटवीन, राइट? ओके, एंड द आयरन मास्टर वॉज ऑल्सो अम्यूज्ड। आयरन मास्टर को ये फिलोसफी सुन के बड़ी हंसी आई कि एक ऐसा टुच्चा मुच्चा सा छोटा सा आदमी इतनी फिलोसॉफिकल बातें कैसे कर सकता है। दिस अम्यूजेस हिम, राइट, हु अग्रीज टू लेट द पेडलर गो विदाउट कॉलिंग द शेरिफ। और इसी वजह से कि उसने इतनी फिलोसॉफिकल बातें करी, द आयरन मास्टर आई मीन अग्रीज टू लेट हिम गो विदाउट हैंडिंग हिम ओवर टू द पुलिस। कि अच्छा भाई भैया तुम जाओ, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं छोड़ दूँ, किसी पुलिस उसको कॉल नहीं कर रहा है, यू कैन गो। बट एडला इंटरवीन्स। एडला को ये बात बुरी लगती है, क्यों? क्योंकि उसे फाइनली जो कन्विंस किया था वो किसने किया था? एडला ने। So Edla was somehow feeling responsible for whatever is happening to him, to the peddler. उसे लग रहा था कि ये मेरी वजह से हो रहा है। However, Anne says that she wants the peddler to stay. अब वो बाप से कहती है अपने कि नहीं पापा ये यहाँ रुकेगा, क्रिसमस तक रुकेगा, right? She knows that she has a hard life and declares that she should have some warmth and safety on Christmas Eve. तो एडला को पता था कि उसकी जिंदगी बहुत खराब जा रही है पेडलर की, ठीक? उसे लोग धुतकारते हैं, हर जगह से भगा देते हैं, wherever he goes he is chased away. कोई उसे वेलकम नहीं करता, सही से ट्रीट नहीं करता। क्रॉफ्टर वॉज एन एक्सेप्शन, ठीक? क्रॉफ्टर एक्सेप्शन था, वरना सब लोगों से भगा ही देते हैं। तो वो चाहती थी कि क्रिसमस पे एटलीस्ट वो साल में एक बार हमारे साथ ये क्रिसमस स्पेंड कर ले, राइट? स्पेशली बिकॉज दे ऑलरेडी प्रॉमिस्ड हिम देयर हॉस्पिटैलिटी। और इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी जबान की पक्की है, एडला हैड प्रॉमिस्ड देम देयर हॉस्पिटैलिटी। याद है एडला ने क्या कहा था? कि तुम हमारे घर में सेफ हो, नो हार्म इज गोइंग टू बिफॉल यू, तुम पे कोई परेशानी नहीं आएगी। वो बात याद आ गई। एंड सो शी कन्विंसेस हर फादर नॉट टू सेंड हिम आउट ऑफ द हाउस, आई मीन, एंड फाइनली द आयरन मास्टर ऑल्सो अग्रीज बट रिलक्टेंटली। आयरन मास्टर खुश नहीं था, लेकिन अपनी बेटी के आगे उसने हथियार डाल दिए। ही सरेंडर्ड। द आयरन मास्टर ग्रम्बल्स मीन व्हेन, आई मीन, it is like disagreeing, strong disagreement, but he had to agree। उसे अपनी बेटी के सामने हथियार डालने पड़े और वो राजी हो गया। पेडलर को क्रिसमस तक घर में परमिशन दे दी उसने कि आप रुक सकते हो यहाँ पे, यू कैन एंजॉय क्रिसमस एंड ऑल द फेस्टिविटीज विद अस। नाउ द पेडलर वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कमिंग फ्रॉम अ टोटल स्ट्रेंजर लाइक एडला। उसे अजीब लग रहा है कि ये लड़की, इसे मैं जानता तक नहीं हूँ, एक बार मिला हूँ, ठीक है, और ये इतना मुझे डिफेंड कर रही है। एंड ही इज स्क्रैचिंग हिज हेड, क्या हो क्या रहा है ये, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? द पेडलर ही वाज अमेज्ड बाय एडलर्स वर्ड्स। ही स्लीप्स फॉर मोस्ट ऑफ द डे। वो कभी भी इतने सुकून से सोया ही नहीं था, ना इतने अच्छे गद्दे, ना इतनी सेफ्टी। अब तो उसे पता है कि मैं सेफ हूं, तो वो बिल्कुल ऐसे सो रहा था गधे घोड़े बेच के, राइट? एंड ओनली ही वॉज ओनली वोकन अप फॉर मील्स। खाने के लिए उसे उठाया जाता, चलो वे उठो, ये खा लो, फिर ये खा लो, ये ठूसो, वो ठूसो। आई मीन ये ईच टाइम ही, आई मीन, एट, गल्प डाउन वॉट एवर वॉज, आई मीन, ऑफर्ड टू हिम, एंड ही अगेन वेंट बैक टू स्लीप। फिर से वो सोने चला जाता था। एट डिनर एडला टेल्स हिम दैट ही इज टू कीप द सूट ही इज वेयरिंग एज अ गिफ्ट। और जो सूट उसने पहन रखा था आयरन मास्टर का, एडला कहती है कि ये सूट मेरे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जबकि ऐसा था नहीं, आयरन मास्टर ने गिफ्ट किया था। बट एडला टोल्ड हिम दिस टू मेक हिम फील मोर कंफर्टेबल, इसलिए उसने कहा। शी ऑल्सो टेल्स हिम दैट ही विल बी वेलकम बैक नेक्स्ट क्रिसमस। द पेडलर इज अगेन अमेज्ड। ऑन टॉप ऑफ दैट एडला सेज कि अगले साल भी क्रिसमस पे तुम हमारे यहाँ इन्वाइटेड हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस फॉर ऑल द क्रिसमस फेस्टिविटीज नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। एंड द पेडलर इज अगेन अमेज्ड। पेडलर फिर से बहुत शॉक में, सोच में पड़ गया। आई मीन इट इज अ पॉजिटिव शॉक कि भाई बड़े अच्छे लोग हैं ये, तो एडला तो बड़ी अच्छी बंदी है ये। आई मीन शी इज, आई मीन, अ थॉरो ह्यूमन। मैं इसे जानता नहीं, गरीब सा आदमी, छोटा मोटा सा, ये इतने बड़े लोग, मुझे एक बार तो इसने परमिशन ले ली और नेक्स्ट ईयर भी इन्वाइट कर रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग विच इज क्रिसमस, द आयरन मास्टर एंड एडला गो टू चर्च। संडे था और क्रिसमस का मॉर्निंग था, तो वो चर्च चले गए सर्मन के लिए। कौन? एडला और आयरन मास्टर, बोथ, आई मीन, फादर एंड डॉटर। वेयर दे लर्न दैट द स्ट्रेंजर स्टेइंग विद देम इज अ थीफ हु स्टोल मनी फ्रॉम द ओल्ड मैन। चर्च में जाके उन्हें पता चलता है, क्योंकि लोग आते हैं, बातें करते हैं, गॉसिप तो होती है। आप कहीं चले जाइए, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, वहाँ दुनिया भर की बातें जो इकट्ठी होती है पेट में, वो सारी बाहर निकलती हैं, राइट? सो देयर दे लर्न दैट दिस मैन हु वाज स्टेइंग विद देम इज एक्चुअली अ थीफ। कि घर में जिस आदमी को उन्होंने पनाह दे रखी है, ठीक, वो एक चोर है और उसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए हैं, राइट, फ्रॉम द ही हैड स्टोलन फ्रॉम द ओल्ड मैन। एडला इज अशेम्ड। एडला के ऊपर तो गम का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगता है सब की जिम्मेदार मैं हूं।
मैंने ही डैड को कन्विंस किया था, वरना वो तो उसे निकाल रहे थे. एंड आई मीन आई वॉज द वन हु हैड सॉट परमिशन फ्रॉम माई फादर टू लेट हिम स्टे. उसे बहुत खराब लग रहा है. शी इज ब्रोकन, टोटली हार्ट ब्रोकन. एंड द आयरन मास्टर वरीज दैट दे माइट हैव बीन रॉब्ड एज वेल. आयरन मास्टर को क्या लग रहा है कि अरे हमारे यहाँ भी चोरी हो गई होगी, अब तक तो वो पूरा सुपड़ा साफ कर गया होगा, घर से सारे चांदी के चमचे बर्तन सब ले गया होगा. ही वुड हैव टेकन एवरीथिंग. उसे इस बात का डर लग रहा है, राइट. When they return home, however, the peddler has left, taking nothing and leaving behind a package for Idla. अब जब वो घर वापस आते हैं, कार्ट से जो कार्ट होती है उससे उतरे भी नहीं होते हैं. आई मीन देयर इज अ वैले देयर. वैले कौन होता है? वैले इज असिस्टेंट, हेल्पर, जो घर में नौकर वौकर होते हैं. उससे कार्ट से उतरने से पहले आयरन मास्टर पूछता है, हैज द पेडलर लेफ्ट? वो आदमी चला गया? बोले हाँ साहब वो तो चला गया. तो उन्होंने पूछा अरे वो तो कुछ चोरी करके तो नहीं ले गया? एंड द वैले सेज नो नो नो, ही इज नॉट टेकिंग एनीथिंग. He went from here, he left here empty handed. खाली हाथ गया, कुछ नहीं था, ना जो पोटली कुछ नहीं. But yes, he has left something. लेकिन वो कुछ छोड़ के जरूर गया है. क्या छोड़ के गया है? Right? So he left behind, I mean a package for Edla. Inside is the stolen money, a rat trap and a letter. उस पैकेज में क्या था? जब वो खोला तो एक रेड ट्रैप था. रेड ट्रैप के अंदर एक लेटर था और वो मुड़े तोड़े से क्रम्पेल्ड नोट थे, 30 क्रोनोस, जो उसने क्रॉफ्टर से चुराए थे. राइट. The letter thanks Edla for her kindness and states that she has freed the peddler from being caught in the rat trap of life. उस लेटर में उसने बहुत ही रैगेड राइटिंग, बहुत ही खराब सी, क्योंकि पक्की राइटिंग नहीं थी. आई मीन ही वाज नॉट एन एजुकेटेड मैन, ही वाज अ ट्रैम्प, ही वाज अ पेडलर, ही वाज अ वेगाबॉन्ड. तो उसने जो भी वो लिख सकता था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, इवन दो आई एम नॉट कैप्टन वॉन स्टाइल, जो आपके फादर मुझे समझ रहे थे, लेकिन इन 2-3 दिनों में आपने मुझे ऐसा प्रतीत कराया, यू मेड मी फील एज आई एम रियली अ कैप्टन. राइट. आपकी इस काइंडनेस के लिए आपका आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. एंड दिस काइंडनेस एक्चुअली ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज चेंज इन दिस मैन. राइट. वो आदमी जो पैसे चुरा के भागा था, वो खुद ब खुद वो पैसे छोड़ के चला गया. चाहता तो घर की और चीजें चुरा के भाग जाता. राइट. बट नो, ही वॉज transformed. This man was transformed through a single act of kindness and love. Right? Okay? So, he signs the letter as Captain Von Stahl. See the beauty. Even though he was not Captain Von Stahl, but because Edla made him feel like one, a captain, right? He signed the letter, right? Signed it off as Captain Von Stahl. So, this was the, summary of your chapter. If you have any questions and any other issues, you can always contact me. Till then, you have a good day. Hasta la vista.